Gin. So gin is once again a big fight between the Britishers and the Dutch. So somebody says that gin is actually originated from England. Somebody said that the gin is originated from the Dutch. Okay, I mean like Netherlands. Gin is the name which is come from Geneva. So people remember one thing, a very famous, I mean like very interesting MCQ question, Geneva. इट इज ऑल्सो नोन एज ए लेडीज डिलाइट. कहा जाता है कि जिन वोडका एक ऐसा ड्रिंक है जो लेडीज लव्स टू ड्रिंक इट. ओके. Then there is something called Dutch courage. It is says that when the Dutch people used to go for fight or used to conquer any land, they used to drink vodka like that, gin like that. The way this gentleman is drinking, you can take a look. They are fighting against the pirates on the Pirates of Caribbean, something like that. And then they used to drink this gin just like meat, and they used to attack them. That's why it says that the Dutch courage. So Dutch people, when they used to go for war, they used to drink this gin and used to jump. Okay. And finally, it's called mother's ruin, a very dangerous issue. Take a look at this. इस पिक्चर में आपको दिख जाएगा क्यों जिनको मदर्स रूइन कहा जाता है. ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग शो. यू कैन टेक ए लुक ऑन द स्क्रीन. ये देखिए एक औरत के हाथ में मरा हुआ बच्चा है. ओके, ये देखिए ये इंग्लैंड में 1500 या फिर 15 या 16 सेंचुरी में एक महामारी शुरू हो गया था. एक्चुअली इसको कहा जाता है, देखिए अल्कोहल इज नेवर गुड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन. ओके, बट यू नो यूरोप में इतना विंटर होता है कि इफ यू डोंट ड्रिंक अल्कोहल you actually not able to survive. So people for good health and everything, even it is also said that alcohol is sometimes good for the heart, basically the wine. Okay, because it has got lots of antioxidant, and antioxidant is lot for good for the heart, also for the alcohol. So people start to drink alcohol in a very fast manner, basically the women. तो वो जो होना था तो वो हो ही गया. तो औरत के प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो अगर ज्यादा अल्कोहल पिएगा तो क्या होगा, द किड्स विल डाई. तो ऐसे मरे हुए बच्चों की जन्म देने लग गए थे 15th and 16th सेंचुरी में. इसलिए जिनका दूसरा नाम है मदर्स रूइन. ये इंग्लैंड में एक जगह है, हॉगार्थ लेन. ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉन बाय सम पेंटर जो भी है. तो ये हॉगार्थ हॉगार्थ लेन बोल के एक लेन है, जैसे समझ लो कि हमारा जैसे कैप्टन अभिमन्यु सिंह मार्ग है ग्वालियर में. उसके बाद डीडी नगर है. ओके, महाराजा कॉम्प्लेक्स है, महाराजा चौक है. तो महाराजा चौक की तरह वहां पे भी इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है हॉगार्थ लेन. उस हॉगार्थ लेन का ये फोटो है जहां पे 15 एंड 16 सेंचुरी में ये हाल हो गया था. सारे औरतों के बच्चे ऐसे मर रहे थे, एंड जनरली दे आर गिविंग बर्थ टू अ डेड चाइल्ड. ओके, naturally leads to lots of other factors that the government of UK decide to put a ban on the gin. Okay, but later when the situation came under control, then London once again start to produce the gin. बट इंटरेस्टिंगली इसी समय में जब इंग्लैंड में जिन मैन्युफैक्चर होना बंद हो गया था, तो नेदरलैंड ने उस टाइम पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था. ओके, इसलिए डच मतलब नेदरलैंड में उसकी मतलब लाइक इट बिकम सो फेमस ओवर देयर. ठीक है. So lots of histories and geography are related with this thing. ठीक है people. So when you read this thing, read with this thing. And the blue color one is the most important thing. इसका नाम एक बेरी है, अंगूर की तरह है ये. Is known as a juniper berry, like strawberry, mulberry, and everything is something called juniper berries. Juniper berries are the thing that is actually used. I mean, like not actually, it is used to flavor the gin. Okay. Now we take a look at the next one, which says that gin is an alcoholic beverage which is actually made from wheat, corn, rye, cereals, or any kind of cereal. And it has flavored with juniper berries. Now, vodka is also flavored, gin is also flavored. Vodka is a white spirit, gin is a white spirit. Everything is exactly same as vodka. कोई vodka और gin के अंदर कोई difference नहीं है until unless somebody added juniper berries in that.
Juniper is also known as Juniper. So Juniper se the name has actually came as a gin. Okay. Now this is your the picture that is coming on your screen. Now take a look at this. These are all your thing. I mean, like, gin is distilled in patent still and then pot still also. Gin can be flavored with anise. You can anise. You can see. They can say that the orris root. This is a root known as an orris. These are all our flavoring agent. Licorice. Okay, this is your licorice. Lemon peels. Okay, then lemon peel you all know. There is something called cassis, nutmeg. ये देखिए nutmeg आपके screen के ऊपर है. Then there is something called coriander roots, and gin is always double distilled, and the second one is for flavoring. जिन एक ऐसा चीज है जहां पे पहला डिस्टिलेशन होता है पेटेंट स्टील में, लेकिन जो सेकेंड डिस्टिलेशन जहां पे हम फ्लेवरिंग ऐड करते हैं, दैट हैपेंस इन पॉट स्टिल. इसके पीछे भी एक कारण है. The reason behind this, pot still give you a fantastic flavor. We'll take a look at a video and we'll understand that how the gin has been flavored. Okay, everybody in the class awake? जागे हुए हैं सब लोग? Yes, sir. ओके ओके, चलो, थैंक गॉड, बहुत बढ़िया. मैं सोचा कि मैं ही शायद अकेला जगा हूँ. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बस हो गया. आई वोंट टेक मच टाइम. ओके, यस प्लीज, एनीबॉडी गॉट अ क्वेश्चन? सर, पेटेंट स्टिल और पॉट स्टिल यूज होते हैं वोडका जिन में, तो इसलिए ज्यादा हैंगओवर होता है क्या? डेफिनेटली यस, एब्सोल्युटली. बेसिकली ये क्या हो रहा है कि पॉट स्टिल पेटेंट स्टिल प्यूरिफाई के करता है और पॉट स्टिल थोड़ा सा हैंगओवर का चीज ऐड कर देता है, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ हैंगओवर. हैंगओवर इज नॉट अ इंपॉर्टेंट कंसर्न, पल्लवी. द बिगेस्ट कंसर्न इज how dangerous it is. 30 ml of neat vodka is dangerous for your stomach rather than 30 ml of neat whiskey, because सिंपल थिंग, अगर आप एक दुकान में जो सैनिटाइजर है, उस सैनिटाइजर को लेके आओ, उसको स्मेल करो, और वोडका को स्मेल करो, देखो कोई फर्क नहीं आपको दिखाई देगा. वही चीज अगर आपके स्टमक के अंदर जाएगा तो क्या क्या होगा आपको. ये फैक्ट है. जब लॉकडाउन के टाइम पे लास्ट ईयर जब लोगों को अल्कोहल नहीं मिल रहा था, तो व्हाट हैपेंड, पीपल स्टार्टेड टू ड्रिंक सैनिटाइजर. हाँ, बिल्कुल सेम लग रहा है. ये बहुत सारे केसेस है. यूपी में, एमपी में, क्या बोलते, आंध्रा में, महाराष्ट्र में ऐसा केस बहुत हुआ है. तो लोग सैनिटाइजर कंज्यूम कर रहे थे. नेचुरली इट्स लीड टू डेथ. उन्होंने गलती पता है क्या किया है? गलती ये किया है, सैनिटाइजर कंज्यूम करना है, करो, प्रॉब्लम नहीं है. बट यस, दे शुड हैव एडेड इन अ वेरी वेरी. अगर आप ऐसे लेके यू विल जस्ट ड्रिंक लाइक दैट, डेफिनेटली यू हैव टू डाई. थोड़ा पहले टेस्ट तो कर लेते यार. अब अल्कोहल नहीं मिल रहा है, उसके मतलब उसमें आपने यू गेट सो मच ऑफ एंग्री, एंड वो एंगर आपका एक बार में निकल गया. पूरा सैनिटाइजर का फिर 500 ml का बॉटल यू जस्ट कंज्यूम, it will just burn your stomach and liver and you will going to die on the spot. ठीक है, so this is the main reason. okay, अब देखिए कि वोट जिन का इंग्रेडिएंट्स क्या है. एकदम सेम है, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली एक छोटा सा एडिशन हो रहा है यहाँ पे, दैट इज नोन एज योर जूनिपर बेरीज. तो अगर देखा जाए, हम अगर जूनिपर बेरीज को वोडका से निकाल ले, सॉरी, जूनिपर बेरीज को अगर हम जिन से निकाल ले, तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम नथिंग बट वोडका. तो हंगेरी, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड मोस्ट ऑफ द यूरोप के मैक्सिमम पार्ट में ये जूनिपर बेरीज मैक्सिमम होता है. अब देखो जूनिपर बेरीज का फायदा क्या है? फायदा बहुत है. इसलिए जिन इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक ड्रिंक. माई फेवरेट ऑल्सो, मतलब आई ऑल्सो लव जिन. एंड जिन इतना अच्छा ड्रिंक है कि यू विल फील लाइक somebody has given you water with a lemon juice. जिन क्यों इतना ये है? इट्स डायरेटिक, इट्स एंटीसेप्टिक, स्टोमैकिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टीज. ये सारे वो केमिस्ट्री के टर्म्स है, बायोलॉजिकल टर्म्स है. बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इससे डायबिटीज होने का चांस बहुत कम होता है. स्टमक के लिए अच्छा है, बेसिकली डाइजेशन के लिए. ये माइक्रोबियल है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है. इसके अलावा इसके अंदर तेल होता है, ऑयल्स होता है. Those oil has got tannin, sugar, tar, resin. Okay,
इट स्टिमुलेट्स द किडनी इंक्रीजिंग देयर फिल्टरेशन रेट। तो अगर देखा जाए तो जिन इज गुड फॉर किडनी। जिन क्या करता है, ये जो बेसिकली डायरेटिक वाली जो डायबिटीज जो बेसिकली किडनी से बिल प्रॉब्लम जो आते हैं उसका फिल्टरेशन रेट जो है वो सही करता है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जूनिपर बेरीज ओनली। लेकिन वोडका इज जस्ट डेडली ड्रिंक। ओके, सो जिन एंड टॉनिक इज अ वेरी वेरी फेमस चेजर। टॉनिक वाटर के साथ जिन को मिक्स करके खाया जाता है हमेशा। सॉरी, नो नॉट खाया जाता है, पिया जाता है। ओके, या सो this is about the juniper berries. So once again, vodka is made from wheat. Gin is also made from wheat. Vodka can be made from potato. Yes, gin can be also made from potato. Vodka can be made from corn. Gin can be also made from corn. सब कुछ सेम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। बस एक बार ओनली होता है वो फ्लेवरिंग वाला। नाउ अब जैसे पल्लवी ने ये सवाल किया कि सर ये दो कैसे यूज हो रहा है, तो पहले एक प्यूरिफाइड अल्कोहल पैदा किया जा रहा है। पहले वोडका पैदा होगा। वोडका जनरली पेटेंसिल से पैदा होगा। पेटेंसिल से पैदा होने के बाद अब हमें उसके अंदर जूनिपर बेरीज को ऐड करना है। वो मैं फ्लेवर दूंगा पॉट स्टिल के माध्यम से। कैसे दूंगा? अब हम वो एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे थोड़ी देर बाद, जस्ट 2 मिनट्स मोर। ये देखिए वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है। वही मैशिंग वोडका में भी था, फर्मेंटेशन भी था, डिस्टिलेशन भी था, और उसके बाद हमने दो चीज और ऐड किया, दैट इज कोल्ड मिक्स मेथड एंड हेड मिक्स मेथड। कोल्ड मिक्स एंड हेड मिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। ये क्या होता है, देखो मिक्सिंग कैसे होगा, कैसे आप फ्लेवरिंग को मिक्स करते हो। आपने मम्मी को कहा मम्मी अदरक वाली चाय चाहिए, रजत सर ने आज 11 बजे से लेके 1 बजे तक बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया, ऐसा बोरिंग लेक्चर दिया उन्होंने। तो अब आपका दिमाग खराब हो गया। मम्मी को कहा आपने अदरक भी चाहिए, कार्डमम भी मिक्स करें। तो मम्मी आपका क्या करता है, पानी गर्म करके चाय के अंदर ही कार्डमम और अदरक को कूट के डाल देता है। नेचुरली थोड़ी देर बाद गर्म पानी में वो फ्लेवर एक्सट्रैक्शन हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्पिरिट के भाषा में कोल्ड मिक्स मेथड, मतलब डायरेक्टली आप पानी के अंदर ही मिक्स कर रहे हो। और एक होता है हेड मिक्स मेथड। ये क्या है, अब अगर आपकी मम्मी चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। तो आपका मम्मी एक्चुअली क्या ये करेगा कि वो जो कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर चाय, विच इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, जहां पे पानी गर्म हो रहा था, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर लगा देगा। एंड उस स्ट्रेनर के ऊपर योर मॉम विल पुट जिंजर एंड द कार्डमम। अब वहां से फ्लेम निकलेगा, आई मीन दैट द वेपर विल राइज। वो जो वेपर जब वो कार्डमम और जिंजर के अंदर से पास होगा, दोज वेपर विल कैच द फ्लेवर ऑफ द कार्डमम। उस वेपर को एक जगह स्टोर करके कंडेंस करके जो लिक्विड निकलेगा, दैट विल हैव अ फ्लेवर ऑफ योर दिस थिंग, योर क्या बोलते हैं इसे, जिन, आई मीन लाइक कार्डमम एंड जिंजर। बट वंस अगेन दिस इज अ वेरी वेरी टफ मेथड। होममेड स्टाइल में ये बहुत ही मुश्किल वाली काम है, हेड मिक्स। लेकिन कोल्ड मिक्स कैन बी इजीली डन, कोल्ड मिक्स कैन बी इजीली डन एनीवेयर। बट स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग के केस में, बिकॉज हमें अगर आप डिस्टिलेशन का डेफिनेशन देखें तो आपको यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस where we boil the alcohol. Naturally the vapors will come out, and the vapors get condensed, it's get cooled down, and while it gets cooled down, it gather all the flavor of the herbs and everything which is added inside the gin. So सवाल अब ये आता है कि जब हम वो जो वेपर जब पास होता है ना, पास होने के टाइम पे that will pass through this botanicals and the herbs. ये also एक famous terms है. If sometime you will encounter this question, what is known as botanicals? Botanicals are nothing which is used to flavor the gin. Obviously, one of them is juniper berries, predominantly used. Apart from that there is a coriander root, orris root, ये वो जो भी है. But these are also known as botanicals. Okay, right? So ये हमारा हो गया वोडका मैन्युफैक्चरिंग। से बाद बॉटलिंग होगा, जिन होता है, फिर यू कैन ड्रिंक लाइक दिस। बट वंस अगेन प्लीज डू नॉट ड्रिंक द अल्कोहल जिन लाइक दिस, आई मीन इट विल आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज याद रखना ये क्लियर एंड व्हाइट स्पिरिट है, बट इट इज वेरी स्मूथ, नॉट दैट हार्ड एज हार्ड एज योर वोडका, बट इट्स ऑलवेज स्मूथ। अब हम सीधा इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं
और हम जाते हैं एक वीडियो की तरफ। अब आपको सीधी भाषा में समझ में आ जाएगा कि जिन कैसे मैन्युफैक्चर होता है। आपको इतनी लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू स्टॉप दी प्रेजेंटेशन नाउ, और मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्टॉप पे करूंगा।